دوست سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کا نام تو نہیں لوں گا، میں ادب کے ساتھ آپ کو بھی اسلام۔ میں یہاں تمام پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بھائی، دوست، بزرگ، پاکستان پیپلز پارٹی کو ماننے والے تمام بزرگوں اور دوستوں کو السلام علیکم۔ میرے دوستوں گزارش یہ ہے کہ الیکشن اب بہت قریب آ چکا ہے۔ تقریر کرنے سے، جلوس نکالنے سے ہم الیکشن نہیں جیتیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن پہ جا کر اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں اور اپنا اپنا ووٹ جو ہے اس کے ساتھ رابطہ کریں۔ اپنے لوگوں کو اس بات کا قائد کرے جو ہمارے ساتھ نہیں ہے، جو وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، فرید انقلابی صاحب کو ووٹ دیں، مطلوب انقلابی شہید کے نام پہ لوگوں کو ووٹ، آپ لوگوں سے ووٹ مانگیں۔ اس طرح ہم الیکشن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم جیتیں گے۔ یہ ہم روز جہاں جاتے ہیں درجنوں کے ساتھ تقریر کرتے ہیں، جدھر کو ہمارا کام نہیں ہے ادھر آ جاتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے آپ میری بات کا برا نہ مانیں، اپنے پولنگ میں دیکھیں ووٹ کدھر کدھر ہیں، اپنے جٹو کا نام لیں تاکہ ہم الیکشن میں آگے جا سکیں۔ میری ایک اور گزارش ہے امیر صاحب کہ آپ یہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر ایک وہ آدمی کا نام آپ خود دیا کریں، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہی جا کر تقریر کروں، یا یہ ضروری بات نہیں ہے۔ میری سب سے گزارش ہے آپ اپنے اپنے پولنگ میں جا کر، اپنے حلقے میں جا کر، جدھر جدھر آپ کا کسی کا تعلق ہے، ہر آدمی ایک ایک ووٹ بنائے۔ یہ 12 دنوں میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اللہ اور رسول کے حکم سے الیکشن جیت جائیں گے۔ ہم وادی بنا کے اندر بھی رواداری کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، ہمارا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے گا، اگر پہلے بھی کچھ نہیں ملا بعد میں بھی کچھ نہیں ملے گا، میری گزارش ہے آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کا بھی دعوت دیں۔ ہم دعوت دیں گے، ان کا کام ہے مانے یا نہ مانے۔ مطلوب انقلابی نے اس حلقے میں آ کر لوگوں کی اتنی خدمت کی ہے، جو لوگ دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں ہم نے 5 سال حکومت کی ہے، 5 سالوں کے اندر اس حلقے کی تقریر بدل دی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں 2 دفعہ وزیر بنے ہیں، وہ مجھے جب بتائیں کہ اس حلقے کے اندر 1 کلومیٹر سڑک اگر بنائی ہے تو میں آپ سے معذرت کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ راجہ تارک اور یہ کیا نام ہے حبیب، یہاں ایک ایسا مطلوب انقلابی ہمیں چھوڑ کر ہمیں دیکھ لگ گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک طاقت ہے، اس حلقے میں کے اندر اس کی جان ہے۔ یہ لوگ سب آپ کے ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو جھنڈے کے ساتھ ہم سب ایک ہیں، کوئی برادری نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برادری ہے۔ واسلام۔ میں پنڈال میں تشریف فرما جناب فاروق چیچی صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے، چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے اور ایک طویل لسٹ ہے، پروٹوکول بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب وقاص وکی صاحب کو کہ انتہائی مختصر 2 منٹ کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں۔ وقاص وکی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعلہ ہو بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا، شعلہ ہو بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا، سچ منہ سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتا، گرتی ہوئی دیوار کا درد ہو لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا، لہروں سے لڑا کرتا ہوں میں دریا میں اتر کر، میں ساحل پہ کھڑا ہو کے سازش نہیں کرتا۔ اسٹیج پہ تشریف فرما محمد مطلوب انقلابی کے نظریات اور افکار کی چلتی پھرتی کتاب جناب محمد ولید انقلابی ایڈوکیٹ صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریاتی شرحوں کے محافظ جملہ قیادت اور اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محمد مطلوب انقلابی کے سرخ سپاہیوں، آپ کو محمد مطلوب انقلابی کے ایک ادنا سا سپاہی کا سلام ہو۔ آج پٹیسری کے باوجود لوگوں، با اخلاق لوگوں، با کردار لوگوں، با شعور لوگوں، جانسار لوگوں اور وفادار لوگوں آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ پٹیسری کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ میرا اور آپ کا تعلق اس قبیلے سے ہے، اس خاندان سے ہے، اس سیاسی پارٹی سے ہے کہ جس کے قائد ذوالفقار علی بھٹو لاہور کے اندر ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے کہ ایک بڑھیا
जीत चुका है। मैं इस शेर के साथ जाना चाहता हूँ कि खून जिगर दे के निकालेंगे रुख भर के गुलाब। हमने इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी है। जिए भुट्टो सदा जिए। खुश किया जाता। मैं जनाब तुफैल गौर साहब आपको भी पिंडारा पर खुशामदीद कहता हूँ। आपके साथ तशरीफ लाए दिगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहता हूँ। अब बिला ताख़ीर चूँकि वक्त बहुत कम है और बार बार मुझे प्रोग्राम मुख्तार करने के लिए कहा जा रहा है, मैं बिला ताख़ीर मैडम नूर साहब और एडवोकेट साहब से मुल्तमस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ। बिस्मिल्लाह। जनाब परवेज़ अकबर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोयरट्टा में वफा का नाम, तहसील सदर जनाब कयूम चौहान साहब, जनाब मुश्ताक गोरसी साहब, जनाब हनीफ कटाना साहब, जनाब शफाकत एडवोकेट साहब, स्टेज पर जितने दीगर हमारे सीनियर रहनुमा बैठे हैं और यहाँ मौजूद तमाम बुजुर्गों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ इतना खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज करने पर। आज आप लोगों ने साबित कर दिया है कि ये पोलिंग स्टेशन कल भी मोहम्मद मतलूब इनकलाबी का था और आज भी इंशाल्लाह आप उनके बेटे को ये पोलिंग स्टेशन जीत कर तोहफे में देंगे। इस जमे गफीर से ये साबित हो रहा है कि आप लोगों को मोहम्मद मतलूब इनकलाबी के तमाम एहसानात याद हैं। कहने और सुनने में बड़ी मामूली सी बात लगती है कि मोहम्मद मतलूब इनकलाबी ने पुल बनाए, मोहम्मद मतलूब इनकलाबी ने सड़कें बनाई, मगर ये पुल और ये सड़क क्या है, ये इस चीज़ का जो अहमियत है इसकी, ये मुझसे और आप टेसरी वालों से बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता। याद करें वो वक्त जब यहाँ पर पानी आता था और आप लोग एक एक महीने का राशन लेकर पूरे महीने के लिए मैसूर हो जाते थे। हमारे बच्चे स्कूल नहीं पहुँच सकते थे। हमारे गमी खुशी के दौरान ना सीहोर बयान या बाहर के लोग यहाँ आ सकते थे, ना यहाँ के लोग वहाँ आ सकते थे। इसलिए हम समझते हैं कि ये हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं है। इसका अंदाज़ा हमें बखूबी है। मेरे भाइयों, मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब ने कभी बरादरियों की सियासत नहीं की है। उन्होंने मसावात, रवादारी, अखुवत, भाईचारे की सियासत की है। क्या शौक मचाया हुआ इन लोगों ने कि ये कर देंगे और ये कर देंगे, एक नई टेक्निक की बुनियाद पर जो है वो सियासत कर रहे हैं। क्या लगता है इन लोगों को कि वो ये इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके मतलूब इनकलाबी की सियासत को ख़त्म कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं। इनकी आने वाली नस्लें भी मतलूब इनकलाबी की सियासत को नहीं ख़त्म कर सकती। मैं आज स्टेज से बड़बला चैलेंज करती हूँ कि सबसे ज़्यादा काम सीहोर, भयान, कटेसरी, यहाँ पर गुज्जर बरादरी के अलावा लोगों के हुए हैं। आप आकर चेक कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मोहम्मद मतलूब इनकलाबी ने बहुत आज वो वक्त आ गया है कि हम मोहम्मद मतलूब को हमेशा वफा करते हैं। चौधरी यासीन साहब से लेकर आप तक, मुझ तक, हम सब मोहम्मद मतलूब इनकलाबी के बेटे के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। यहाँ आकर मैं शॉर्टली एक बात दोबारा रिपीट करूंगी चौधरी लाल नूरी साहब की, कि जब उन्होंने कहा था कि अगर मतलूब इनकलाबी के बेटे को टिकट ना मिला तो हम बॉक्स के अंदर वोट डाल के मोहम्मद मतलूब इनकलाबी के कब्र पे जाके रखाएंगे। टाइम की कमी के बायस एक बार फिर आप सबको ये कहूँगी कि अच्छे तरीके से अपने वोट डालें, अपने कारकुन की हिफाजत करें, अपने पोलिंग स्टेशन की हिफाजत करें। मैं आजी खलील साहब, ज़हीर कालर साहब, नईम रफ़ीक एडवोकेट साहब, चौधरी तुफैल साहब, चौधरी फरियाद साहब, चौधरी आसफ साहब, चौधरी सरार सुल्तानी साहब, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने ये खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज किया। जिए इनकलाबी, जिए यासीन, जिए वो। मैं गिटार में बैठे जनाब मेंबर बार कौंसल अब्दुल कयूम शाकर साहब से मुल्तमस हूँ कि आप तशरीफ़ ले आएँ, स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। अब्दुल कयूम शाकर साहब, आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिख आबाद कारकुन मोहम्मद मतलूब इनकलाबी के सिपाही वलीद इनकलाबी साहब के भाई जनाब अब्दुल क़य्यूम चौहान साहब इस स्टेज पर तशरीफ लाए गुफ्तगू करना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंतहाई काबिल-ए-एहतराम उम्मीदवार कानून असम्बली, आप नौजवान और बुजुर्गों का मान मतलूब इनकलाबी साहब के फर्जंद अरजमान जनाब वलीद इनकलाबी साहब आज के इस प्रोग्राम की सदारत अजीत ज़फ़र साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम मौजूदीन और पिंडाल में अजीत राशिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और मैं भी आपके साथ तशरीफ़ लाया। यहाँ पे आया जनरल सावर साहब, कमर साहब, पाकिस्तानी पार्टी के नायब सदर जनाब क़य्यूम शाकर साहब, मुश्ताक गौसी साहब, मुस्तफ़र साहब, नाम लूँगा तो बहुत वक्त गया होगा। मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम की सदारत करने वाले जो ज़फ़र साहब का बहुत मशहूर हूँ और मैं उनकी लंबी ज़िंदगी की दुआ करता हूँ, इसलिए कि जब पिछला इलेक्शन हुआ था, उससे पिछला इलेक्शन हुआ था, तो अल्लाह ताला ने कोई हिम्मत दी, इस्तिकामत दी कि पहले मतलूब इनकलाबी साहब के प्रोग्राम में मैनेज करते रहे और आज जो है उनके बेटे के प्रोग्राम मैनेज कर रहे हैं। इनकी पूरी टीम है जो फरीद हैं, जहांगीर हैं, उसके बाद खलील साहब हैं, सैयद कालिद साहब हैं, सब साथी बाकी जो मैं नाम ना ले सकूँ, आपका भी बहुत मशहूर हूँ। बुनियादी पर ये जो कटेसरी है, ये जजीरा है छोटे का, और यहाँ से जो इखलास के साथ, इखलाक के साथ जो पॉलिसी निकलती है वो गिरद और नवाब के इलाकों में बड़ा असर रखती है। इस बुनियाद पर अहले कटेसरी वाले भी बहुत काबिल इज़्ज़त हैं और उनकी अज़मत को भी सलाम पेश करते हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम के सादत से, चूँकि ये तो फैशन भी है कि इलेक्शन में हमने स्पीचें भी करनी होती हैं, नज़रियात पे बात करनी हुई है, भुट्टो साहब को हमने बहुत उठाना होता है, बेनज़ीर साहब को बहुत उठाना होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम जिनको उठा रहे हैं उनकी पार्टी के उम्मीदवार कौन है, उनको वोट कैसे दिलवाना है, वोट हैं या नहीं है। तो मैं आपसे ये गुजारिश जरूर करूँगा, मैं किसी से जो है किसी को चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, तरकीब नहीं कर रहा हूँ, जिम्मेदारियों का एहसास करना पड़ता है। जब आप किसी को वोट देंगे, अपना मेंबर असेंबली बनाएंगे, किसी पार्टी को वोट देंगे, पार्टी की हुकूमत बनाएंगे, तब आपकी इज्जत होगी ना। ऐसे नजरियात बयान करते 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 कहीं पूरे हो गए और कहीं पूरे हो जाएंगे, फायदा इसका बाद नहीं होगा। इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ, शाकर साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, अफसर कामर साहब, जावर शाह साहब, इनकी जो कानून की दोनों की टीम थी, वो खासे हमारे ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पे जो हमने दरख्वास्तें दायर की थी, वो वोट जिस जगह पे लगवाना चाहते थे वहाँ पे वोट नहीं लगे। इनकी प्रचार की बहुत कोशिश की, लेकिन चूँकि हालात तो वाक़यात ऐसे थे, तो वो मेरे ख्याल में इनसे पूछ कर मेरे पोलिंग स्टेशन पे 148 वोट थे जो मैं चाहता था वहाँ पे नहीं लगे, तो वो वोट हमने कैसे डरवाने हैं, ये पॉलिसी बनानी है। वो हमने किस पोलिंग स्टेशन पर किस तरह के लोगों को लेकर जाना है, हमने ये पॉलिसी बनानी है। तो इस तरह कैसे अगर मेहरबानी करें, एक हफ्ते में एक बार एक मीटिंग में शामिल, अब तो खैर हफ्ता रह गया है, 2 दिन के बाद एक मीटिंग अटेंड करें, उधर 2 दिन में आप काम कर लेंगे और उधर से आपका जो जज्बा मीटिंग में अगर तकरीर करने का मेरे समेत वो भी पूरा हो जाएगा। जहाँ तक बात है इलेक्शन की या खर्टा के अंदर, इस वक्त आप ये कहेंगे आप इलेक्शन जीत चुके हैं, तो ये आप ना कहें, प्लीज़ मेहरबानी करें। आप ये कहेंगे हम इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो है इलेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह ताला के फजल करम से एक बहुत अच्छी टीम बन चुकी है, जो टीम मूवमेंट कर रही है, एक मोमेंटम बन चुका है। अब इसको कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अपने स्टेशन, अपने अपने इलाकों में हम चौकीदारा करें। आजकल जो है हम तो बहुत सरपोश आदमी हैं, शायद कोई बंदा भी यहाँ पे बैठे हुए हैं इनमें 5-10 हज़ार रुपया खर्च करने की पोजीशन में ना हो, लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने बोरियत जो है वो खोलने का प्रोग्राम बना रखा है। तो इस एतबार से आपने पैसे नहीं देने, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास मतलूब इनकलाबी साहब मगफूर का नजरिया और सोच है, उनका किरदार है, उनकी सलाहियत है, उनका बेटा जो यतीम बच्चा है और खुद वह अकेला है, ना उसका भाई है, चाचे ताए मदद कर रहे होंगे, उनको पता होगा या उनको पता होगा, इसलिए आपने चौकीदारा करना है। और चौकीदारा ये करना है कि आप जिन लोगों को कन्वर्स कर रहे हैं वोट के लिए, उनके साथ साथ रहें। कहीं कोई बंदे जो है ना वो चोरी छुपी होता है ना, वो चोरी छुपा जो है ना वो आपने रोकना है। और दूसरी बात यह है कि वैली के अंदर जो इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, अल्लाह के फजल करम से आपका जो एक मयार इलेक्शन का या जो मोमेंट बनी है उससे खासी पिजराई मिल रही है। इस पिजराई को हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप 2-2, 4-4, 6-6 बंदे बगैर किसी को बताए आप मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के लोगों के पास जाएं और बुजुर्गों को छोड़ दें, आप बिल्कुल बरादरी से उनको छोड़ दें, आप दिगर कबार के लोगों के पास जाएं, उनको रिक्वेस्ट करें। चूँकि मतलूब इनकलाबी साहब ने छोटा के अंदर किसी किले की बुनियाद पर सियासत नहीं की, जो तमीर तरक्की के काम किए किसी किले की बुनियाद पर नहीं किए। यहाँ पे किसी पे उन्होंने पुल दिया तो गुजरों को नहीं दिया, सड़क दी तो उन्होंने अपने
बराबर इत्तेफाक को नहीं दिया, सब लोगों को दिया है। सब लोगों के पास जाए और उन्हें कहें कि अगर मजलूम इनकलाबी की सोच को, उस फिक्र को आपने जिंदा रखना है तो मजलूम इनकलाबी का बेटा उसका मेंबर असेंबली बनना बहुत जरूरी है। इसलिए बनना बहुत जरूरी है कि आने वाली जो नस्लें हैं उन नस्ल को जो गुलाम बनाने की प्लानिंग की जा रही है, जो एक साजिश की जा रही है, एक साजिश उस वक्त हुई जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक तरफ रखकर हमारे दोस्त चले गए, हम उसे गिला नहीं करते, हम आज भी उस पार्टी के अंदर है, लेकिन उनको जो छोड़ करके उनके खिलाफ साजिश हो गई। आज उनके खिलाफ साजिश होने के बाद उनके साथ चलने वालों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और उसके बाद वलीद इनकलाबी के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। ये साजिशों का मुकाबला आप सब लोगों ने करना है, मुतहिद होकर करना है, मुनज़्ज़म होकर करना है। वोट आपने इसलिए लेने हैं कि आपने मुस्तक़बिल करीब में एक लीडरशिप जो आपके सामने बैठी है इसको डेवलप करना है, अपनी नस्ल का मुताफ़िज़ करना है। मैं शायद वक्त ज़्यादा ले चुका हूँ, मैं आपसे माज़रत चाहते हुए मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि पोलिंग स्टेशन वाले दिन उस वक्त तक अपने पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना जब तक आपका वो जो रिजल्ट कार्ड है वो प्रेज़ाइडिंग अफसर की मोहर के साथ आपके हवाले न हो। उसके बाद हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, आपसे रब्ता रखेंगे। अपने वोट आर वोट पे नजर रखना है। पोलिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे तो नंबरी नहीं हो रही, वहाँ पे वोट जाली तो नहीं पड़ रहा, आपके वोट को रोका तो नहीं जा रहा। आपने वो जो 12 घंटे गुजारने हैं वो सर पे कफन बांध कर गुजारने हैं। सर पे कफन बांधेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, बासूरत दिगर आपको जन्नत के अज़ाब का सामना करना पड़ेगा। वो हमारा बिलाल को भी बहुत शुक्रिया जी। मैं पंडाल में बैठे जनाब रऊफ जुलवे साहब, जनाब चौधरी अजीम साहब, जनाब चौधरी शेर मोहम्मद साहब, तैमूर साहब, बुखार साहब, यूसुफ साहब, जिन जिनके मैं नाम वाले सब उनके माजत हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। जनाब वलीद इनकलाबी साहब, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, चूँकि इलेक्शन स्ट्रैटेजी का नाम है, चूँकि इलेक्शन पॉलिसी का नाम है, चूँकि इलेक्शन आपकी सिक्रेसी का नाम है, तो अगर पंडाल के अंदर जलसों में जलसागाह के अंदर आपने अपनी प्राइवेसी, आपने अपने ज़ाती शिकवे डिस्कस करना शुरू कर दिए तो मैं समझता हूँ कि इसका भी बड़ा बैड इंप्रेशन है। खुदारा अपने गिले, अपने शिकवे, अपनी शिकायतें, बड़ा वक्त पड़ा हमारे पास, ये हम बैठ के इकट्ठे तय कर लेंगे। मैं अब बिला ताखीर जनाब महफूज चेची साहब से मुतमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाब महफूज चेची साहब। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मेरे और आपके कायद जनाब मोहम्मद मतलूब इनकलाबी के फर्जंद अर्जुमान मोहम्मद वलीद इनकलाबी जो हमारे नौजवान लीडर हैं, और आज की इस खूबसूरत बज़म के सदर मोहतरम जनाब चौधरी तफ़ैल काला साहब, स्टेज की जीनत बने हुए जुमला कायदीन व कारकुनान अहदेदारान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पंडाल में तशरीफ रखे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भट्टो के सिपाहियों, मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो शहीद के भाइयों, आपकी अजमत को, आपके हौसलों को सुर्ख सलाम। आज हम यहाँ कटेसरी के मकाम पर अपने इलाके की बहुत बड़ी नामवर शख्सियत मोहतरम जनाब बाबा नूरी मरहूम मगफूर के घर पर मौजूद हैं। उनकी सियासी और समाजी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। उनके साहबजादगान में नहायती मोहतरम जनाब मास्टर अब्दुर्रहमान साहब मरहूम मगफूर, चौधरी नबीब बाग साहब मरहूम मगफूर आज हम में मौजूद नहीं हैं। उनके जुमला बरादरान ने अपने बालक के मिशन को जारी और सारी रखा। बाबा नूरी मरहूम मगफूर के पोतों में हमारे नहायती इज्जत के लायक जनाब ज़हीर कालस साहब ऑफ यूके, चौधरी बिशारत कालस, चौधरी तारक कालस और उनके जुमला बरादरान जो इस वक्त मेरे ख्याल में इंग्लैंड से वो इस प्रोग्राम को बराह रास्त पे देख रहे हैं। उनकी सियासी समाजी खिदमात को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करते हैं। और साथ ही हमारे इस इलाका के जिला कोटली के हमारे बुजुर्ग सियासी रहनुमा मौजूदा इलेक्शन में जिनकी सरबराही से, जिनकी सरपरस्ती से हम महरूम रहे, जनाब चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब आज अलीर है। मैं उनकी दराजी उम्र के लिए दुआ गो हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बे बारी ताला उनका साया हमारी सरों पर कायम और दायम रखे। और साथ ही जिन दोस्तों ने, जिन साथियों ने आज दीगर पार्टियों को, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून को छोड़कर हमारे काफिला में शमूलियत अख्तियार की, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ और उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम शहीदों के इस काफिला में आपको कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे।
इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई बरोज इतवार का दिन और सुबह का सूरज जो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी की उम्मीद लेकर शुरू होगा। अल्लाह ताला आप सबका कदम कदम पे बिछा के बहार की किरणें शबे खज़ां के ये साए लपेटने होंगे। हमारे बाद भी गुजरने के कारवां अक्सर हमें ये राह के पत्थर समेटना होंगे। इसके बाद मैं मुल्तमिस हूँ ज़िले सदर चौधरी परवेज़ अकबर साहब से कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात से नवाजें। परवेज़ अकबर साहब। और मैं पिसाब में आमद पर अपने भाई अहमद बशीर इनकलाबी साहब को खुशामदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस समृद्धि प्रोग्राम के सदर चौधरी तुफैर साहब और इस अजीम शान समृद्धि प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मोहम्मद वलीद इनकलाबी साहब एडवोकेट, नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर अब्दुल क्यूम कमर साहब, मुश्ताक कुरसी साहब, क्यूम शाकिर साहब, क्यूम चौहान साहब, अनीफ खुराना साहब, शवाकत इनकलाबी साहब, चौधरी फरियाद साहब और इसरार सुल्तानी साहब, नईम रफ़ीक साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीनों करगरान। मैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल आने वाले बुजुर्गों और नौजवानों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं ये बात यहाँ करना ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने 5-6 दिन पहले ये कहा था कि अगले 10 दिनों में वादी बना की जो तारीख है वो बदले जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह शमूलियत का जो सिलसिला शेरी से शुरू हुआ था वो सिलसिला जारी है। खट मिठी दड़ा से भट्टी बरदरान, यहाँ डोग प्यार से भट्टी बरदरान, शेरी में मुगल बरादरी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और आज रूपड़ी से भट्टी बरादरी का एक बहुत बड़ा काफिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ है। और कटेसरी में आज जो लोग शामिल हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इन लोगों की मोहम्मद मतलूब इनकलाबी के रूह के साथ वो मोहब्बत है कि आज ये लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद पहली मरतबा देखा है कि पहले कहीं वक्त में जो हुकूमत होती थी लोग उनके साथ जाया करते थे और अपनी पार्टी छोड़ा करते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि मतलूब इनकलाबी के साथ चलने वाले तमाम कबाइल उसके बेटे वलीद इनकलाबी के साथ भी चट्टान की तरह खड़े हैं। और आज जोक दर जोक कामयाबी वलीद इनकलाबी का मुकद्दर बनेगी और वलीद इनकलाबी में भी अपने बाप की तरह वो सलाहियतें मौजूद हैं और वलीद इनकलाबी में भी बाप की तरह वो सलाहियतें मौजूद हैं और लोगों के साथ उनके साथ जो रवादारी और मोहब्बत का जो रिश्ता है वो कायम दायम रहेगा और वलीद इनकलाबी लोगों को कभी मायूस नहीं करेंगे। एक मरतबा फिर मैं नए शामिल आने वाले तमाम लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुश आमदीद कहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद मतलूब इनकलाबी का बेटा वलीद इनकलाबी आपकी इज्जत, आपका वकार, उसका ख्याल रखेंगे। और मेरी सीनियर क़यादत से भी ये गुजारिश होगी कि आप भी अपने अपने इलाकों में चले जाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को उनको बताएं। और एक बात जो ज़रूरी है मेरे भाई क्यूम चौहान ने की है कि अगर हम मीटिंगों में रहे और उस पोलिंग वाले दिन 25 जुलाई को लोगों को प्रॉपर तरीके से पोलिंग स्टेशन पर न ले जा सके तो फिर प्रॉब्लम होगी। आपने उस दिन गाड़ियों का भी बंदोबस्त करना है और जो लोग बीमार हैं उनको वहाँ ले जाना है और वोट पोल करवाने हैं। अगर बीमार लोग एक पोलिंग पे 10 होंगे तो अब 170 पोलिंग स्टेशन है और 1700 वोट बनता है। आप बीमार लोगों के भी वोट कास्ट करवाएं और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी वलीद इनकलाबी का मुकद्दर बनेगी। आर्यन एक हिस्ट्री आपकी इज़्ज़त को सलाम। आपने मोहम्मद मतलूब इनकलाबी के बेटे वलीद इनकलाबी का जो शानदार इस्तेमाल किया है वो याद रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जनाब ये थे परवेज़ अकबर साहब, ज़िलाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर कोटली। मैं
लोग से आए हुए तमाम अपने दोस्त हबीब शाहिद साहब, मियाँ मसूद साहब, चौधरी अयूब साहब, यहीं से आए हुए जनाब बशीर साहब और दो दूर से आए हुए मेहमान, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खास तौर चौधरी फकीर मोहम्मद साहब जो हमारे बहुत पुराने कारकुन हैं। मैं सुबह 10 बजे का इनको देख रहा हूँ, ये इस गली में घूम रहे हैं कि कब शहजादा कश्मीर जनाब वलीद इनकलाबी आएगा और उसकी मैं दीदार करूँगा। ये सुबह से इधर बैठे हुए हैं और जब भी मैं इनसे बात करता हूँ तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये होता है जनाब, अगर किसी की कोई दिल में कोई चीज़ होती है तो वो नज़र आ जाती है। मैं जनाब शुक्र अदा करता हूँ जनाब चौधरी लाल साहब का, जिनकी वीडियो मैंने देखी थी कि उन्होंने कहा था कि लोगों तुम कहते हो कि मैं वोट किसको दूंगा, आप बात मेरी सुन लो। उन्होंने जिस जबान में कहा मैं उसमें कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा वो गल सुन माड़ी, ये तो उसका पुत्र है, अगर कोई बंदा ना खलता तो टोटे भरी तो खड़सा तो वोट सारे कबर पर सट्टी ऐसा। ये होने ना बड़े लोग जिन्होंने लोगों ने दिल विच कोई गल होनी है। इस तरह जनाब तारक साहब, राजा तारक साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मियाँ महफूज साहब, चौधरी गफूर साहब, चौधरी मसूद साहब, यासीर गुलशन साहब। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, जो दूर से मेहमान आए हुए हैं, जुल्फकार चेची साहब, चौधरी मुख्तार साहब, सब लोगों का शुक्रिया। और जो इस पुरवकार तकरीब जिन्होंने इंतखाब किया, जनाब फरियाद चौधरी साहब, तुफैल साहब, कालद साहब, जो सारे बरादरान हैं, इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं जिसको हस्ती को दावत खिताब देना चाहता हूँ वो ये मेरे कायल मतलूब इनकलाबी साहब कहते होते थे कि ये किसी मखसूस इलाका के सर सैयद नहीं है, बल्कि इस हल्का के सर सैयद हैं जनाब सरपरस्त आला मुश्ताक गोरसी साहब। जनाब मुश्ताक गोरसी साहब, एक बात तो मैं कहना भूल गया हूँ सारी, ये 15 तारीख को समलारी हाउस में 3 बजे जलसे का इंतजाम है, तो सब अहबाब को शिरकत की दावत देता हूँ। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब महमूद खसूसी उम्मीदवार अलकम नंबर 6 के बेटा और साहिब सदर स्टेज में बैठे हुए जुमला साहिब और पिंडाल में जो बैठे हुए जो प्रेस से तल्लक है, जो दिग्गज शोबार से गुजारिश ये है कि यहाँ बेशुमार तकदीर हो गई हैं। अब मजीद बात एक बात तो 2-3 बातें कुछ साहिबान ने की हैं, वो बड़ी अहम थी। एक तो ये थी कि नीफ राना साहब ने बात की कि लोगों को अपने अपने बोली पर काम करना चाहिए, तो योग साहब ने भी कुछ बातें की हैं। एक बात का मतलब शायद मेरे ख्याल में वो लीगल टीम से उनको पढ़नी चाहिए। जो काम ये करवाना चाहते थे सबसे ज़्यादा जो हमारे पोलिंग के रिजल्ट अप्रूव हुए हैं वो इसी हल्का से तल्लुक रखते हैं। तो टीम ने बड़ी जब से कुछ साल मुताबिक 2-4 बात चीज़ हो जाती है और आगे ये उन्होंने शाकिर साहब मुझे भी मैं बात कर लेता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो लोग आज शामिल हुए मुख्तलिफ जमातों से, एक तो हम उनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सही रास्ते का इंतखाब किया। मुझे याद है कि एक इलेक्शन में जब ये पुल नहीं था, वो चौधरी लाल साहब बैठे हैं, तुफैल साहब बैठे हैं, दिग्गज जुमा थे, तो सबसे पहले इस जजीरे वाले के लोगों का तो मुतालबा पुल का मुतालबा था। ये एक जजीरा था और हमें कई दफ़ा मौका मिला, हम जनाजे पर यहाँ आते थे। ये एक तो बड़ा घर था और उस वाले से जो जनाजे पर दरिया के पार खड़े रहते थे इधर नहीं पहुँच सके। आज इसको मतलूब इनकलाबी साहब की कोशिश से और इन लोगों की आपकी तकालीफ का को मद्देनजर रखते हुए आपको खरेटा शहर के साथ जोड़ दिया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो यहाँ की जो मसलन ज़मीनें हैं या जो भी चीज़ें हैं उसके रेट तकरीबन प्रॉपर्टी का वैल्यू हो गई है, लोगों को आसानी हो गई है। तो मतलूब इनकलाबी और पीपल्स पार्टी वालों का काम ही यही था लोगों के लिए आसानी पैदा करें। ये सड़क वहाँ से पार जो फैमिली तरफ जाती है वो सड़क भी किया और इस तरह भी दिग्गज काम है। आप लोग जो है ये दिन रात मेहनत करें और अपना रिजल्ट निकालें। और ये बात बिल्कुल नहीं ठीक है चौहान साहब ने कि जब तक आप अपने पोलिंग न छोड़ें, जब तक आपके फॉर्म न मिलें, आप सारे समझदार हैं, इलेक्शन लड़ते रहें और सारे इसमें कमी कोताही नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारा इस वैली के हवाले से या बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह
पिछले इलेक्शन से लेकर उससे पिछले भी सारे इलेक्शन देखे हैं, लेकिन जितने लोगों की शमूलियत इस दफ़ा इस पीपल पार्टी में हो रही है, इतनी शायद हमने पहले कभी नहीं देखी, और दिन ब दिन अलहमदुलिल्लाह इसमें इजाफा हो रहा है। तो इसमें आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की काविश, आप लोगों की जो वो शामिल है, और ये सब लोग जो यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं, जो पंडाल में बैठे हुए असल वर्कर वो हैं, तो दिन रात आपकी मेहनत जो है वो इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएगी। चौधरी रज़ाक साहब की कमी तो ज़रूर है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि चौधरी रज़ाक साहब घर बैठ के जितना ठंडे दिनों दिमाग से वो काम करके लोगों को गाइड करते हैं, ये शायद तो जलसे जुलूस करके ना कर सकते हैं। तो वो जहाँ भी बैठे होंगे वो हमारे लिए एक सरमाया है, और ऐसे लोग जो हैं वो बहुत कम पार्टी में दस्तयाब होते हैं। मैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और आप लोग जो शामिल हुए हैं अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत नसीब फरमाए, और जो मौजूद हैं ये दिन रात मेहनत करेंगे, और इंशाअल्लाह आप रिजल्ट जो देखेंगे अल्लाह ताला उसमें दिन रात तरक्की का साथ फरमाएगा। मैं इसके साथ ज़्यादा टाइम मगरिब का वक्त हो गया है, अज़ान हो गई, तो इसलिए जल्दी से जल्दी खुदा हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मदद। मैं दानिश कालस, अकील कालस, अंसर कालस, ज़हीर अहमद कालस साहब जो खुसूसी तौर पर जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में बहुत तमन किया, खेल कालस साहब, मोहित कालस साहब, ठेकेदार माजी साहब, तफैल साहब, आप तमाम आप आपका मशकूर हूँ। एक ज़रूरी ऐलान जो मैं आपके गोश्त गुजार करना चाहता हूँ, कल मुरहा 13 जुलाई शाम 6 बजे दरना में एक अजीम शान जलसा मुनक़िद किया जा रहा है। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वहाँ भी तशरीफ़ ले आएँ। अब मैं चेयरमैन साबर साहब और मियाँ राशिद साहब आपको भी पिंडाल आमद पर खुशामदीद करता हूँ और आपके बेहद मशकूर हूँ। अब मैं जनाब चौधरी महबूब एडवोकेट साहब का मुल्तज़ हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए और मुख्तसरन अपने खिलाफ का इज़हार करें। चौधरी महबूब एडवोकेट साहब। आज इस पुरवकार तकरीब के सदर जनाब चौधरी तफैल साहब, मेहमान खुसूसी जनाब वलीद इनकलाबी साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा और पेलार में तशरीफ फरमा। पीपल्स पार्टी के नजरियाती बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, मैं सबसे पहले जो आज नून लीग और पीटीआई को छोड़कर शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको खुश आमदीद कहता हूँ और उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने शोधा की पार्टी और गाजियों की पार्टी का चुनाव किया है। इंशाअल्लाह जो नए लोग आए हैं उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना ये पीपल्स पार्टी का वतीरा है। जो लोग नए आते हैं उनको भी इसी तरह कॉन्टेक्ट किया जाता है, इसी तरह इज्जत दी जाती है जिस तरह पहले लोग पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं। मैं एक बार फिर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और जनाब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, टाइम बहुत थोड़ा है, आगे भी बहुत मीटिंग्स रहती हैं, तो मैं इतनी बात कहूँगा कि 25 जुलाई को आप साहब ने 3 बार मोहर लगानी है और मोहम्मद वलीद इनकलाबी को मोहम्मद मतलूब इनकलाबी शहीद के बेटे वलीद इनकलाबी को कामयाब करके असेंबली में भेजना है। ये काम जो है ये उस दिन सुबह से लेकर शाम तक सब लोगों ने अपने अपने स्टेशन पर रहना है और वो जो फॉर्म है वो 45 वो लेकर फिर घर जाना है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। बस सलाम। अब मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब्दुल क़य्यूम कमर साहब कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब अब्दुल क़य्यूम कमर साहब। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस कॉर्नर मीटिंग के सदर जनाब चौधरी तफैल साहब, मेहमान खुसूसी उम्मीदवार कानून साज असम्बली हल्का कोरेटा जनाब वलीद इनकलाबी साहब और स्टेज पर बैठे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन,
चौधरी परवेज़ अकबर साहब, जनाब चौधरी अब्दुल करीम चौहान साहब, नूर साहब और एडवोकेट साहिबा, जनाब अब्दुल करीम शाकिर साहब, शफाकत इनकलाबी एडवोकेट साहब, चौधरी महबूब साहब एडवोकेट, महफूज नंबरदार महफूज साहब, चौधरी लियाकत साहब, इस तरह जनाब महफूज चेची साहब और स्टेट सेक्रेटरी नाइम रफ़ीक एडवोकेट साहब और एलियान फ़ियान केसरी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वलीद इनकलाबी साहब का शानदार इस्तेमाल करके आपने मोहम्मद मतलूब इनकलाबी शहीद के साथ वफादारी और कमिटमेंट को निभाया। मैं आज के इस मौका पर मैं मोहम्मद मतलूब इनकलाबी शहीद की खिदमत को खराज अकीदत पेश करता हूँ। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हम तफैर साहब के बच्चों की शादी में आए, मौसम बरसात था और हम जो है वो ये नाला बांध क्रॉस न कर सके और वापस चले गए और ये 2 दिन हम वापस जाते रहे, शादी में शरीक ना हो सके। कहने का मतलब यह है कि मेरे कायद मोहम्मद मतलूब इनकलाबी शहीद ने यहाँ पर पुल देकर आप केसरी का एक दरीना जो मसला है वो हल किया था। मैं उनकी तामीर और तरक्की, उनकी सियासी सोच और सियासी सोच और फिक्र को खराज अकीदत पेश करता हूँ। और आज जो लोग फ़ियान के इस केसरी के मकाम पर दीगर जमातों को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, मैं उनको दिल की अमी करैयों से खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके इज़्ज़त और मकाम और मर्तबे का जो है वो ख्याल रखेगी। और चूँकि मेरे बेशुमार पेशरो मुकर्रीन ने जो है बड़ी लंबी बात की है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं इस मौका पर पापी लाल साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 1906 में जब 2006 में जब मतलूब इनकलाबी शहीद ने पहला इलेक्शन यहाँ से लड़ा तो यहाँ के केसरी के मकाम पर जो है वो हमारे एक सिक्का बनकर उन पापी लाल साहब थे और जिनके मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब की शहादत के बाद जो उनके ख्यालात सामने आए वो भी आपने सुने। मैं उनको फिर हमारे इस काफिले में केसरी के तमाम लोग शामिल हुए, चौधरी तफैर साहब, फरियाज साहब, फरीद साहब, सब लोग ने मिल के यहाँ पर आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी केसरी के अंदर मजबूत हाथों में है। तो मैं आपसे ये तवक्को करूँगा कि जो वक्त थोड़ा बचता है इसमें अपनी सफ़ों में इताअत पैदा करें, अपने जो नाराज़ लोग हैं उनको अपने साथ मिलाएं और यहाँ से पीपल्स पार्टी को शानदार कामयाबी अता करें। और मुझे आज बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि गुज़श्ता कई दिनों से लक्कर कटोड़ से लेकर जिंजोट बहादुर तक और वहाँ से लेकर बड़ाली गाला तक लोगों ने मुख्तलिफ जमातों को छोड़कर आप पर जिस कदर एतमाद का इज़हार किया है, मैं तारीख में इस एतमाद को और ये लोगों के जोश और जज्बे को मैं नहीं भूल सकता। ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी है कि कोई ऐसी गई गुजरी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब मोहम्मद मतलूब इनकलाबी शहीद के इस कारवां में इतना इजाफा हो चुका है कि इंशाअल्लाह अगर आपने होश से काम लिया, आपने जोश के बजाय होश से काम लिया तो 25 जुलाई को वलीद इनकलाबी की कामयाबी जो है वो यकीनी है। और मोहम्मद वलीद इनकलाबी की कामयाबी केसरी और फ़ियान के लोगों ये आपकी कामयाबी होगी। आज मैं इस मौका पर अपने नहायत काबिल इकराम अजीम रहनुमा जनाब चौधरी रज़ाक साहब की जो खिदमत को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो साहिब फराश है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनकी सियासी जदोजहद हमारे लिए जो मशरे राह है। और आज वो जो है वो अपने जो बीमारी की हालत में भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैंने शायद ज़्यादा वक्त ले लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, मोहम्मद मतलूब इनकलाबी शहीद जिंदाबाद, आप सब पैदा। मैं जाहिद भट्ट साहब, चौधरी ज़ोहैब साहब, आप तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए।
اب میں نائب طفیل صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. نائب طفیل صاحب آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. یہ مرزا بشارت صاحب جی مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی کے قافلے میں شامل ہوئے. میں آپ کو بھی مبارک چاہتا ہوں. جی آیا میں راجہ ندیم صاحب کو بھی پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ راجہ نبیل صاحب اور راجہ ندیم صاحب چودھری فیاض صاحب کی قیادت میں محمد مطلوب الباقی کے قافلے میں شامل ہوئے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مرزا بشارت صاحب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. صفدر صاحب, سفیر پٹی صاحب, آپ یہاں تشریف لائے, آپ کو بھی بہت مشکور ہوں. عمیر طارق شیخ ایڈوکیٹ صاحب, آپ یہاں تشریف لائے, آپ کا بھی بہت مشکور ہوں. چوہان صاحب, آپ کا بھی بہت مشکور ہوں. آپ یہاں تشریف لائے. پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام احباب جن کا میں نام نہ لے سکا, سمنار سے, ڈوگ سے, لاگڑا سے, ندیم صاحب, آپ تمام احباب جن کا میں نام نہ لے سکا ان سے میں معذرت ہوں. عمر بشیر انقلابی صاحب یہاں تشریف لائے, ان کا بھی بہت مشکور ہوں. عمر بشیر انقلابی صاحب پنڈال میں تشریف لائے, جلسہ گاہ میں تشریف لائے, آپ کا بہت مشکور ہوں, ممنون ہوں. چونکہ وقت کا میں دامن میں کوئی وسعت نہیں رکھتا, میں جناب چونکہ پروٹوکول ڈسٹرب ہو رہا ہے, لیکن جو ریکویسٹ ہے میزبان ہے جو اس محفل کے معین کالہ صاحب, ان کی طرف سے بات کر کے کہا کیا جا رہا ہے کہ جناب شفاقت انقلابی صاحب 2 منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. جناب شفاقت انقلابی صاحب, تو پروٹوکول کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, پروٹوکول کے ڈسٹرب ہوا, اس کا میں معذرت خواہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. جناب مہمان خصوصی نامزد امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی سر سید کشمیر محمد مطلوب انقلابی صاحب کے لفظ جگر محمد ولید انقلابی صاحب اسٹیج پر تشریف فرما. مرکزی نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جناب عبدالقیوم قمر ایڈوکیٹ صاحب, اور اسٹیج پر تشریف فرما جملہ قیادت پاکستان پیپلز پارٹی اور پنڈال میں بیٹھے میرے بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, آپ سب کو میرا سلام. پروٹوکول کی چونکہ خلاف ورزی ہے, مرکزی نائب صدر صاحب بول چکے ہیں اور مجھ سے تمام سینئر جو ہے وہ بات کر چکے ہیں, لہٰذا مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بات کریں, میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. صرف کٹیسری کے خوبصورت جزیرے میں رہنے والوں, کٹیسری کے خوبصورت اور محبت کرنے والے لوگوں, یقیناً آپ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں, لیکن ابھی آپ نے اپنے قائد محمد ولید انقلابی صاحب کو بھی سننا ہے. میں آپ کی نظر صرف ایک شعر کر کے اجازت چاہتا ہوں. یہ شعر اہلیان کٹیسری صرف آپ کے لیے ہے کہ نہ منہ چھپا کے جیے, نہ سر جھکا کے جیے, ستم گھر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم ان کے ساتھ جیے تو شمع جلا کے جیے, ہم ان کے ساتھ جیے تو شمع جلا کے جیے. میں آج کے اس پروگرام کے تمام میزبانان گرامی جناب ظہیر کالج صاحب, جناب
अजान पता नहीं अजान नहीं है तू तो खेल पड़ने क्या कर रहे हो शर्मे ना खत्म हो गई है मैं जनाब सगीर गुलशन साहब, नाज़िम राही साहब, तारक फसाना साहब, वसीम काशर साहब, ज़मीर काशर साहब, जोधी बरार साहब को भी बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि आपने जनाब में तशरीफ़ फरमाएं। मैं आपको भी यहाँ कलम वेलकम करता हूँ। अब चूँकि वक्त बहुत मुख्तसर है तो मैं अब मुख्तसर वक्त के लिए जनाब मेंबर बार कौंसल जनाब अब्दुल कयूम शाकर एडवोकेट साहब से मुल्तमस हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। अब्दुल कयूम शाकर एडवोकेट साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की शाम मेहमान गिरामी और मेज़बान और कायदीन के नाम करते हुए मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस सुहानी शाम के सदके, अल्लाह ताला ज़ुल्म रसूल के सदके, अल्लाह ताला फातिमा की चादर के सदके, अल्लाह ताला प्यारे नबी जी के वास्ते से मतलूब इनकलाबी शहीद के बेटे वलीद इनकलाबी को कामयाबी और कुमरानी से नवाजे। मैं अपने भाई क़ियूम कमर साहब और अपने भाई क़ियूम चौहान से एक गुजारिश करके जा चाहूँगा कि हमने क्या करकर्दगी की पोलिंग सिस्टम पे नेशनल इजलास में, नेशनल मीटिंग में, नेशनल जलसे में आपने ही वजारत करनी है। याद जिंदा सोबत बाकी शेर के साथ कि मैं मर के भी बज़्म वफा में जिंदा हूँ, मैं मर के भी बज़्म वफा में जिंदा हूँ। तलाश कर मेरी महफल मेरा मिजाज में ढूंढ वासलाम। मैं पिंडाल में बैठे हुए अगर किसी का नाम लेना भूल गया हूँ तो तमाम अबाब से माजरत हुआ कि किसी की वजह दिलादारी हुई हो तो उसके लिए माजरत हो। अब मैं बिला दाखिल मैं अपनी शख्सियत को दावत खिताब देने जा रहा हूँ। मेरी मुराद आप तमाम अबाब जानते हैं कि शहज़ादा कश्मीर सर सैयद कश्मीर जनाब मोहम्मद मतलूब इनकलाबी के लफ्ज़ जिगर मेरे कायद, आपके कायद, मेरी मुराद जनाब मोहम्मद वलीद इनकलाबी साहब तमाम अबाब से गुजारिश है कि खड़े होकर अपने महबूब का इस्तेमाल कीजिए। जनाब मोहम्मद वलीद इनकलाबी जिंदा है
छोटे हटियो छोटे हटियो बच्चे सारे नीचे आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जाने केसरी जनाब इस आज की महफिल के जो है वो इस महफिल के होस्ट, इस महफिल के मेज़बान जनाब मोइन खालिद साहब, जनाब चौधरी तुफैल साहब, मैं आपका और आप सब का जाने कटेसरी से ताल्लुक़ रखने वाले, कटेसरी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अजीज़ों का, भाइयों का, दोस्तों का और बुज़ुर्गों का मैं जो है वो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिस अंदाज में आपने आज मेरा और शाह नवाज यासीन साहब का आपने इस्तकबाल किया। वो मैं सच्ची बात है कि मेरे पास जो है वो अल्फाज नहीं। हमेशा ये कहा जाता था कि कटेसरी जो है वो मतलूब इनकलाबी साहब का दूसरा घर है, तो मैंने आज जो है वो सच्ची बात है वो चीज़ महसूस भी की जिस मोहब्बत के साथ और जो है जिस इक़्क़त के साथ आज आपने हमारा जो है वो इस्तकबाल किया। मैं इसमें आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी अज़मत को मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं नए शामिल होने वाले तमाम जो दोस्त हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो भाई हैं, मैं इन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें पहलवान बशीर साहब, यूनुस साहब, उसके बाद अयूब साहब, शाहिद साहब, उसामा अयूब साहब, अरशाद मुगल साहब, जनाब शहजाद मुगल साहब, भट्टी जायद साहब, ख्वाजा इफ्तिखार साहब, बनवार चेची साहब और दीगर जो दोस्त हमारे साथ शामिल हुए, जिनमें अक्षामुल हक साहब, मोहम्मद नुमान साहब, सुफियान साहब, उसके बाद अयाज चौधरी साहब, जनाब उमर क़यूम साहब, अलीम भट्टी साहब, नफीस अहमद साहब और तनवीर भट्टी साहब। मैं आप सब का जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पे जो है वो आप सबको दिल के अथाह गहराइयों से जो है अपनी तरफ से और अपनी तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जुमला क़यादत की तरफ से, अपने कारकुनों की तरफ से, भाइयों की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कबीले का, ख़ानदान का हिस्सा बनने पे आपको दिल के अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आज यहाँ पे जो चेहरे देख रहा हूँ उसमें जनाब चेयरमैन रज़ाक साहब का चेहरा मुझे नज़र नहीं आ रहा, जो सेहत की वजह से, सेहत की खराबी की वजह से जो है वो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं। जनाब चेयरमैन रज़ाक साहब का सियासत के मैदान में निस्फ सदी से ज़्यादा का तजर्बा वो रखते हैं और हमारी जो सियासत है, जो हमारी टीम है, मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब के वो सिक्का बंद और एक तवील जो है वो सियासी सफ़र उन्होंने मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब के साथ तय किया। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक जो है वो उनको जल्द से त्याग करे और हमारे जो है वो दरमियान जल्द उनको जो है वो लाए। मेरे भाइयों में जो है वो चूँकि आगे भी मैंने जाना है तो मैं ज़्यादा लंबी बात जो है वो किए बगैर कोशिश करूँगा कि मुख्तसर अल्फाज में जो है वो अपनी बात आपके सामने रखूँ। गुजारिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिन ब दिन जो है वो उसके काफिले में लोग जोक दर जोक शेरी कोटा से लेके जो एक हिस्सा है जो बॉर्डर को लगता है वहाँ से लेके कोटला समरियाली तक, जहाँ से आगे जो आखिरी पोलिंग स्टेशन है जिसके बाद फिर नकियार हल्का नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है, वहाँ तक जो है वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे इस कबीले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस तिरंगे झंडे में जो है वो इसके नीचे जो है वो हमारे साथ शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ये लोग किसी एक बरादरी या किसी एक इलाके के लोग नहीं, बल्कि हर इलाके और हर बरादरी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, हर मकतबा फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ रखने वाले और हर जो है वो रंग और नस्ल के लोग वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब की टीम पे और मुझ पे जो है वो एतमाद का इज़हार कर रहे हैं और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आप सब लोगों को जो यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और मोहम्मद मतलूब इनकलाबी के चाहने वाले, मैं आप सबको
جو ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تسلی رکھیں، آپ لوگ مطمئن رہیں۔ جس انداز میں آپ لوگوں نے کام کیا الحمدللہ، جو محنت آپ نے کی اس محنت کا جو صلہ ہے، جو چھاؤں ہے اس کی، وہ الحمدللہ اب ہمیں محسوس ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہمارے اس فیملی میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی بہت تیزی سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور جو الیکشن کا مرحلہ ہے اس کو انشاءاللہ اسی سپیڈ میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس میں کامیابی سے جو ہے وہ ہم امکنان ہوں گے انشاءاللہ۔ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پہ اعلان ٹیسری بالخصوص اگر کام کی بات کی جائے تو کاموں کے اعتبار سے 5 سالوں میں صرف محمد مطلوب انقلابی صاحب کو کوئٹہ میں جو اقتدار جو الیکشن ہو رہی تھی انہیں 5 سال کا ٹائم ملا، تو اس 5 سالوں میں جو انہوں نے کام کیے وہ کام میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اور وہ جو کام ہے وہ اجتماعی کام ہے۔ ان کاموں سے جہاں پہ انفرادی اور ذاتی جو ہے وہ لوگوں کو نوکریاں دی گئیں اور باقی کام کیے گئے، وہاں پہ اجتماعی کام بھی اپنا مقام رکھتے ہیں، جن کاموں سے الحمدللہ وہ تمام قبائل کے تمام علاقوں کے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ میں جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ کام آپ یقیناً دیکھتے تھے۔ یہ والا جو 5 سالہ دور ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جو تبدیلی سرکار ہے، جو صاف چلی شفاف چلی کا نعرہ لگاتے ہیں، جو ان کے کام ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح جو ہے وہ سودے بازی کا بازار گرم ہے، جس طرح جو ہے وہ سودے بازی کشمیر سے لے کے کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو ٹکٹ کے حقدار اور کینڈیڈیٹس ہیں، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے صاف چلی شفاف چلی کے جو ہے وہ نام پہ، تو میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ان باتوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں کہ حالات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں، لوگوں کے کیا مقاصد ہیں، لوگ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کس طرز عمل کے ساتھ اپنے مقاصد کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کا بھی سودا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ یہ نصیحت کروں گا، گزارش کروں گا کہ ان سوداگروں سے آپ لوگوں نے ہوشیار رہنا ہے، اور آپ نے اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہوئے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا ہے، محمد مطلوب انقلابی صاحب کا ساتھ دینا ہے، اور یہ ساتھ اس لیے دینا ہے کیونکہ محمد مطلوب انقلابی نے اپنی جو زندگی ہے وہ عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار انہوں نے سیاست میں گزاری، اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جوانی کے ایام وہ آپ کے درمیان گزارے، اور اس کے بعد وفا کرتے ہوئے جو اپنا جذب خاکی تھا وہ بھی آپ کے حوالے کیا، جس طرح انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور اس کے پیچھے بھی حکمت تھی، اس کے پیچھے بھی سوچ تھی، اور اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ تربیت انہوں نے جو میری کی، وہ چیزیں وہ باتیں آج میری سمجھ میں آ رہی ہیں کہ جذب خاکی کا جو ہے وہ یہاں پہ دینا، یہاں پہ دفن ہونا، اور پھر میری جس انداز میں تعلیم اور تربیت کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ جو اقدام اٹھائے، میں جو ہے وہ سچی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ محمد مطلوب انقلابی صاحب کا جو کاز تھا، جو مشن تھا، جو سوچ تھی اور جو نظریہ تھا، اس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ آپ سب نے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور محمد مطلوب انقلابی صاحب کا ساتھ دینا ہے۔ بلا شبہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی سوچ، ان کے نظریات، ان کے افکار وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہ ہمارے درمیان جناب عبدالقیوم قمر صاحب کی صورت میں موجود ہیں، وہ ہمارے درمیان جناب عبدالقیوم چوہان صاحب کی صورت میں موجود ہیں، جناب پرویز اکبر صاحب کی صورت میں موجود ہیں، میڈم نور صابر صاحبہ کی صورت میں موجود ہیں، چودھری لیاقت صاحب، شفاقت انقلابی، اس کے بعد عامر انقلابی، اس کے بعد افتخار چوہان، چیئرمین اسٹڈی سرکل میرے بھائی اظہر کرامت، چودھری محبوب صاحب، نائب طفیل صاحب، اس کے بعد چودھری طفیل صاحب، چودھری فریاد صاحب، قیوم شاکر صاحب،
اور دیگر تمام جو ذمہ داران جن کے میں نام جو ہے وہ اگر میں نہیں لے سکا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی صورت میں محمد مطلوب انقلابی صاحب کے نظریات، افکار، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی جدوجہد وہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور انشاءاللہ اس جدوجہد کو، اس تسلسل کو جو ہے وہ ہم سب مل کے نوجوان اور بزرگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھنے والے تمام لوگ، یہ ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم جو ہے وہ اس سوچ کو، اس فکر کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے میرے والد، میرے قائد محمد مطلوب انقلابی صاحب کا ساتھ دیا، میں امید کرتا ہوں کہ اسی انداز میں جو ہے وہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ووٹ دیں گے، اور 25 تاریخ کو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے 25 تاریخ کے دن میرا خیال رکھنا ہے۔ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے 5 سال میں آپ کی چوکیداری کروں گا اور آپ کا خیال رکھوں گا۔ میں راجہ طارق صاحب کو مشکور اور ممنون ہوں۔ میں جناب خواجہ یونس صاحب کا مشکور ہوں۔ میں حاجی لال صاحب کا مشکور ہوں۔ میں ان سب بزرگوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی اور محمد مطلوب انقلابی صاحب کی بات کی۔ میں جب ان بزرگوں کو دیکھتا ہوں تو سچی بات ہے میرے حوصلوں میں، میرے جذبے میں وہ اضافہ ہوتا ہے۔ مجھے فخر ہوتا ہے کہ ایسے زیرک، باشعور اور بزرگ لوگ اور نوجوان وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں یہاں پہ موجود بکلا برادری سے تعلق رکھنے والے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب جناب نعیم رفیق ایڈوکیٹ صاحب، جناب شفاقت انقلابی صاحب اور دیگر تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں پریس سے تعلق رکھنے والے جناب غلام محمود جلال صاحب اور نثار اعظم راجہ صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے جو ہے وہ ہمیں یہ ہمارا جو ایونٹ ہے اس کو آپ نے کور کیا۔ میں نمبردار محفوظ صاحب جو ہے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے قافلے میں جو اضافہ ہو رہا ہے، جو ہمارے دوست جو اپنے گھر واپس تشریف لا رہے ہیں، مجھے ان دوستوں پہ، ان لوگوں پہ، اور جس طرح وہ ماشاءاللہ واپس آنے میں وہ ایکٹیو ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے گھر واپس آئے ہیں۔ ان کو ایڈجسٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ وہ یہاں پہ جو ہے وہ جہاں پہ پہلے تھے وہاں سے زیادہ ایڈجسٹ ہے۔ میں چیئرمین سلام صاحب، میں اپنے بھائی عارف کٹانہ صاحب اور تمام جو نئے شامل ہونے والے پرانے ہمارے دوست جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لائے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں شکور کہنا تھا، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ اکثر گلا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ میں نے آپ کو یاد نہیں کیا، میرے دل میں موجود ہے، میں ہمیشہ آپ کو یاد رکھتا ہوں۔ تو میں تمام جو ہے وہ یہاں پہ تشریف فرما جتنے، میں ڈاکٹر اکرم صاحب اور تمام لوگ، تو پھر ناموں کے اگر سلسلے میں ہم جائیں گے، ویسے میرا خیال ہے میں نے چھوڑے کم ہی ہیں، لیکن جو ہے وہ ناموں کے سلسلے میں اگر ہم جائیں گے تو بات پھر طوالے تک تیار کر دے گی۔ اسرار سلطانی صاحب جو ہے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو حاجی راشد صاحب بھی یہاں پہ تشریف لائے اور دیگر تمام لوگ۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں، اسی محنت کو آپ نے جاری رکھنا ہے، اور ولید انقلابی بن کر اور محمد مطلوب انقلابی کی نظریات اور افکار کا ضامن بن کے، اس کا سپاہی بن کے جو ہے وہ آپ نے گھر گھر پاکستان پیپلز پارٹی کا پیغام لے کے جانا ہے۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جیت آپ کا مقدر بنے گی۔ میں اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہترین استقبال کرنے پہ، بہترین پروگرام منعقد کرانے پہ آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اور ہاں، جو ہمارے دوست جو ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ان کی سپورٹ اور ان کا جو ان کے خاندان کی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں جناب زہید کالج صاحب، اس کے بعد ڈاکٹر وحید طفیل صاحب، طارق صاحب اور تمام جو لوگ
जो हमें जो है वो बैठ से सुन रहे हैं, डॉक्टर वहीद साहब, बिशारत काले साहब, कदीर साहब, जफर काले साहब, दानिश काले साहब, अपने भाई अदील जट का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह बेहतरीन दिन रात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सिक्का बंद और नजरियाती कारकुन बन के, मेरा भाई बन के, मजदूर काबी का सिपाही बन के जिसका वो मेहनत कर रहा है। मैं आप सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और आपकी खिदमत को सलाम पेश करते हुए जा चाहता हूँ। मामा बाप तशरीफ रखें, मामा बाप से गुजारिश है कि तशरीफ रखें। मैं चूँकि यहाँ खाने का बस इंतजाम किया गया है, गुलबार भट्टी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, इनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। देखें जी, ये जलसा के आखिरी नमाज है, अब चूंकि जलसा खत्म होने जा रहा है, लेकिन कायद से मोहब्बत का ये आलम है कि लोग जो कायद के काफिले में शामिल हो रहे हैं। मैं आकाश भट्टी साहब से भी उनको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होकर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं मेहरान भट्टी को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होकर खुश आमदीद कहता हूँ। एक जरूरी ऐलान है कि समदारी और उसके मुकाम पर एक बहुत शुक्रिया। अगला प्रोग्राम आपसे कुछ देर बाद बड़ा बख्शिया होगा। हमारे साथ ऑनलाइन रहिएगा। आपसे गुजारिश करता हूँ कि आधे घंटे बाद बड़ा बख्शिया प्रोग्राम होने जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। आपसे थोड़ी देर बाद बड़ा बख्शिया